معاشرتی اور نفسیاتی ترقی. معاشرتی اور نفسیاتی سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ. آج کے کانٹینٹس کیا ہیں ہمارے؟ ارلی ڈیولپمنٹ، سوشل میچورٹی، ہیئرنگ امپیئرمنٹ، and the family, self-concept and self-awareness, the pattern of social development, curriculum and the social implications. ٹھیک ہے جی، these are our contents. We will discuss on that contents. ٹھیک ہے جی. Social development. Social development is about improving the well-being of every individual in the society so they can reach their full potential. The success of the society well-being of the each every and social development means investing the people, the families will also do well and whole the society will benefit. سوشل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ افراد پہ خرچ کرنا، افراد کو اس قابل بنانا کہ اگر افراد پہ آپ خرچ کریں گے، افراد کو اس قابل کریں گے کہ افراد آپ کے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوں گے، تو اس طرح معاشرہ آپ کا ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. اور افراد پہ کیا اسے کہتے ہیں، انویسٹ کرنا. ٹھیک ہے. سوشل ڈیولپمنٹ یہ کہلاتی ہے، کیونکہ افراد کی کامیابی ہی معاشرے کی کامیابی ہو، اور افراد پہ خرچ کرنے کا، افراد جو ہے اگر وہ سیٹ ہو جائیں گے تو افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. Being socially aware means that you understand how to react the different social situation and effective modify your interactions with other people so that you achieve the best result. The net result of social awareness is the ongoing development of social skill. Social awareness کا کیا مطلب ہے؟ سوشل معاشرتی آگاہی. سوشل awareness کا کیا مطلب ہے؟ معاشرتی آگاہی. Being a socially aware means that you understand، آپ یہ جانتے ہیں کہ how to react the different social situation، کہ آپ نے معاشرے کی مختلف جو سچویشن آپ کو پیش آئیں گی ان پہ آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. and effectively modify your reaction with other people، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معاشرے کی آگاہی کے بارے میں سمجھ آ رہی ہے؟ معاشرے کی آگاہی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کیسے رکھنا ہے، اور ان کے ایکشن کے نتیجے میں آپ کا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے ایکشن برا کیا ہے تب بھی آپ کو اچھے ہی اس کا رسپونڈ کرنا چاہیے. سو دیٹ یو اچیو دا بیسٹ ریزلٹ. دا نیٹ ریزلٹ آف سوشل اویئرنیس is the going development of the social skills. ٹھیک ہے. Why social awareness؟ social awareness کیوں ضروری ہے؟ معاشرتی کی آگاہی کیوں ضروری ہے؟ social awareness gives you the ability to understand. social awareness جو ہے معاشرے کی آگاہی آپ کو جاننے کی صلاحیت آپ میں پیدا کرتی ہے. and respond to the need of others. improve your social skill، یہ آپ کی social skill کو improve کرتی ہے. and gain the respect of others، اور دوسروں and gain the respect of others، اور دوسروں کی سے آپ عزت حاصل کرتے ہو. understanding other people's feeling is central to emotional intelligence. ٹھیک ہے. آگے social integration، اتحاد یا انضمام. ٹھیک ہے. social integration. Social integration is the movement of the minority groups such as culture minorities, refugees, and neglected section of the society
into the mainstream of the society. कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन ये होता है कि आपके माशरे के वो पिसे हुए लोग जो है, अगर आप अपने माशरे को डेवलप करना चाहते हैं, अगर अपने माशरे को तरक्की देना चाहते हैं, तो अपने माशरे की मिनॉरिटीज़ को, वहाँ के रेफ्यूजीज को और निगलेक्टेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं, जो नज़रअंदाज किए गए हैं, जो माशरे के जो सेक्शंस हैं, उनको डेवलप करके, इस्ताबल करके, उनको मेन सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाना, यही माशरे की कामयाबी और माशरे की डेवलपमेंट है। ठीक है, social integration is the movement of the minority groups such as cultural minorities, refugees and neglected sections of the society into the mainstream of the society. The concept of integration is essential for to everything. हर बंदे को integration के बारे में मालूमात होनी चाहिए. Integration of special kids to into the ordinary society. ठीक है, society in the background of the social stigma. ठीक है, that is the wrongfully attached to the special needs of the children. ठीक है, इसका भी मतलब यही है कि आपको स्पेशल किड्स के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए कि वो किस तरीके से आपने उसको एक उसकी खराबी को दूर करके उसको इस काबिल बनाना है और उसको माशरे की तरक्की में मदोबावन साबित कराना है। ठीक है ना, जब आपके माशरे के लोग जो है वो डेवलप हो जाएंगे, वो सब जो है, जो आपकी निगलेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं, वो आपकी जो है डेवलप हो जाएंगी और उनको आप मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। इस तरीके से आपका माशरा, आपकी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, तरक्की कर जाएगी। ठीक है जी, सब यही है डेवलपमेंट सोसाइटी का तरीक़ेकार के निगलेक्टेड सेक्शंस को आप इनहेंस करके, उनको डेवलप करके मेन स्ट्रीम में लेके आए। जब मेन स्ट्रीम में आप लेके आएंगे तो आपके अफराद कामयाब होंगे, आपके अफराद जो हैं माशरे के वो डेवलप होंगे। जब माशरे के अफराद डेवलप होंगे तो इस तरीके से आपका माशरा डेवलप होता जाएगा। ठीक है जी, सोशल मेच्योरिटी। ठीक है, हाँ जी, आप लोगों को सोशल इंटीग्रेशन का पता लगे हैं? सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है जी, बताएं, जिसको पता लगे लिखें, टाइप करें, शाबाश। सोशल इंटीग्रेशन ये ले लो, इधर आओ, कपड़े तय लगा के देते, कपड़े ले लो। आराम से बैठना, किसी के आगे बोलने की जरूरत नहीं, चुप करके अपना एक साइड पे बैठे रहो। कोई खाना खा लिया अम्मा? मैंने क्या कहा है आपको? चुप करके बैठे रहोगे ना तो कोई कुछ आपको नहीं कहेगा और आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना भाई। हाँ जी, तो सुन रहे हैं, आवाज आ रही है तो फिर मैं जरूरत नहीं थोड़ा है। कैरी ऑन रखूं। मैंने आपको पहले ही कहा था जरूरत नहीं है। इन्होंने चल जाना, फिर बैठ के आप पूरी ने कार्टून देखने।
साइड में बैठो, भाई से भी लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सुनिए थोड़ा सा वहाँ चल लेते हैं ना, तो फिर जो है ना, फिर थोड़ा सा आगे ब्रेक डाल लेंगे, ठीक है। हाँ, गुड, शाबाश, योर बेस्ट, गुड रिस्पॉन्ड। ठीक है, सोशल मेच्योरिटी, where live mature people, they can solve the problems, handle any situation, and understand every life of the matters you call maturity. बिल्कुल, maturity यही है कि आप अपनी उम्र के मुताबिक जो है ना, आपके फैसलों में, आपकी बात में, आपके रिएक्शन में जो है ना, वो होना चाहिए, मेच्योरिटी नजर आनी चाहिए। फिर आ गया, फिर आ गया। समझ आई ना आपको बात है तो कि बैठ के बताओ। सोशल मेच्योरिटी क्या होता है, माशरती क्या होता है कि आपके फैसलों में, आपके रिएक्शन में, आपकी बातचीत में पता चलना चाहिए कि आप उम्र के साथ मैच्योर हो रहे हैं। जब इस तरह अफराद उम्र के साथ उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से पता चलेगा कि वो मैच्योर हो रहे हैं, तो इस तरह आप में सोशल मेच्योरिटी पैदा हो जाएगी। ठीक है, सोशल मेच्योरिटी। आगे, इम्पैक्ट ऑन फैमिली, फैमिली पर असर। ठीक है, when a family receive news of child's disability or special needs, the parents sometimes feel denial, guilt, anger, anger और मैं अपनी शौक खाला के लिए इनिशियली। पढ़वा रही हूँ। ठीक है, जब वालिदैन सुनते हैं कि उनके यहाँ स्पेशल बच्चा पैदा हुआ है, तो सबसे पहले तो वो डिनाइल में चले जाते हैं, डिनाइल करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे यहाँ जो है ना ऐसे कोई गूंगा बहरा बच्चा या क्या नाम है, विजुअल बच्चा पैदा हो जाए। फिर डिनाइल से वो निकलते हैं, फिर वो गिल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ओहो ये मेरे गुनाहों की गलती है, या मेरी ये है, या वो है, या फिर इसके बाद जो वो एंगर पे आ जाते हैं, एंगर, नाराज होते हैं, कहते हैं फलां ने मुझे बदवा दे दी, फलां ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया। इवन के बाज लोग तो ऐसे होते हैं अच्छा कि वो ठहरो, अल्लाह रिकॉर्डिंग को छोड़ फोन। को नहीं छोड़ते, अल्लाह से भी एंगर होते हैं, वो अल्लाह से भी शिकवा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इससे बचा दिया। और शौक इनिशियली, और बाद लोगों में इब्तदाई तौर पर सख्त सदमे में आ जाती है, बाद लोग बहुत ज्यादा सदमे में आ जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फैमिली, जब किसी फैमिली के यहाँ एक स्पेशल बच्चा पैदा होता है, तो वालिदैन में क्या होता है, सब डिनाइल में चले जाते। वही उम्र होती है जिसमें आप बच्चे के लिए प्रॉपर कुछ सोच सकते हो, प्रॉपर कुछ ट्रीटमेंट के बारे में कर सकते हो, हाल
حوال, لیکن اس دوران آپ جو ہے نا اس کو اگنور کرتے ہو اور اس کو ڈینائل کرتے ہو, ٹھیک ہے. پھر گلٹ ہوتا ہے, پھر اینگر ہوتا ہے, پھر شاک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. As the start of the slowly acceptance the news and work towards the aiding and assisting the child in any way possible to make the adoption in their home, securing the resources and financial assistance. They may feel stress, fatigue, and possible even helpless, ٹھیک ہے. اس دوران بچہ جو ہوتا ہے at the start slowly accepts the news, ٹھیک ہے, and work towards aiding and assisting their child. شروع میں آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی انہونی نہیں ہے. In any way possible to making adoption their home, financial assistance, stress آپ میں کرتے ہو, fatigue کرتے ہو, ٹھیک ہے. To make the necessary change in their home environment and their lifestyle accommodation the child, ٹھیک ہے. آپ کے کا جو ماحول ہے وہ بھی بچے پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. In the case of hearing impairment, ongoing hearing test, sitting with doctors specialized and resource aids, speech therapy, etc. is something the family can accept in their long term future, ٹھیک ہے. والدین یہی تو بات جو سمجھانے والی ہے کہ اگر کسی والدین کسی گھرانے میں اگر ایک اسپیشل جو ہیرنگ امپیئرڈ بچہ ہے, جو گونگا بہرا بچہ ہے پیدا ہوتا ہے, تو والدین پہلے کیا کرتے ہیں, جو اس کو کر لیا جائے اس کو بہتری آ سکتی ہے. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے والدین زیارتوں میں اور مطلب پیروں فقیروں پہ کے پاس جانے پہ گزار دیتے ہیں. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو جس میں آپ بچے کے کو انیشلی اسٹیج پہ اس کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس پہ اوور کم کسی حد تک پا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. امپیکٹ آن فیملی کے بارے میں رائٹ کریں آپ. امپیکٹ آن فیملی, ایکول بیسک رائٹس. ہاں جی, اب آپ جاگے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں شکر ہے. ایکول بیسک رائٹس, آپ مساوی حقوق کی دستیابی کی بنیاد پہ آپ اس کو اسپیشل بچے کو آپ مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں. ایجوکیشن اپرچونٹیز آف دا ایجوکیشن, اس کو تعلیمی مواقع فراہم کر کے آپ اس کو مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں. ایکول اپرچونٹیز فار ارننگ لیولیہڈ, آپ اس کو کمائی کے طریقے, کمانے کے طریقوں میں بتا سکتے, ان کو کمانے کے مواقع ہیں وہ فراہم کر کے اس کو لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اس سے تبھی لا سکتے ہیں کہ کبھی جب وہ اس کو بیسک رائٹس ملیں گے, وہ معاشرے میں میچور ہوگا. معاشرے میں جب میچور ہوگا تو اس کو مین اسٹریم میں آپ لا سکتے ہیں. تو معاشرے میں میچور وہ کیسے ہوگا, اس کو ایجوکیشن اپرچونٹیز فراہم کریں گے, آپ اس کو کمانے کے مواقع فراہم کریں گے, آپ اس سے شیئرنگ فیسلٹیز کریں گے, جو سہولتیں ہیں جو کہ آپ نارمل لوگوں کو دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ آپ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایکول اپرچونٹیز آف ایکسیس, آپ اس ہر جگہ رسائی, ایکسیس رسائی, پہنچ, آپ اس کی پہنچ کے مواقع فراہم کریں گے. equal opportunities to recreational activities, آپ اس کے تفریح کے مواقع فراہم کریں گے. no discrimination at all, کسی بھی صورت میں آپ اس میں ڈسکریمنیٹ نہیں اس کو کریں گے, آپ کسی بھی اس کے ساتھ غیر مسویانہ رویہ نہیں رکھیں گے. یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ڈسیبل بچہ, ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ, ایک ہینڈی کیپڈ بچہ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا بہترین
कारगर साबित होके वो माशरे की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर सकता है। पॉइंट, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हाउ टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप चिल्ड्रन, जी बोलें, टाइप करें, शाबाश। करने में आपको प्रॉब्लम क्या क्या आती है? एक्सेप्टेंस, सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस होती है, वालिदैन इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि हमारे पीछे बाप दादा नस्लों में भी कोई बच्चा गूंगा बहरा पैदा नहीं हुआ, कोई बच्चा अंधा पैदा नहीं हुआ, कोई बच्चा हैंडीकैप्ड पैदा नहीं हुआ। पहले तो वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। जब आप किसी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हो। सोशल एटीट्यूड बहुत अहम है कि माशरे का जो रवैया है, माशरे का जो बर्ताव है, वो आपके साथ बड़ा अजीब हो जाता है। लोग ऐसे बच्चों को बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये कोई अजीब सी मखलूक है। डाउट अबाउट एबिलिटीज ऑफ द हैंडीकैप चिल्ड्रन। और माशरे के जो लोग, आम लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, उनको हैंडीकैप बच्चे जो होते हैं, उनकी जो एबिलिटीज होती है उन पे डाउट होता है, उन पे शक होता है। ठीक है, उन पे शक होता है। हालांकि देखें, मैं एक अरसा दराज से स्पेशल एजुकेशन के इदारे से मुंसलिक हूँ, काम कर रहा हूँ, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने देखा है कि इन बच्चों की जो जहानत है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बेहतर है कई नॉर्मल बच्चों से। ठीक है, तो इसलिए ये जो होता है ना, बच्चों को मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन करने के लिए जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस होता है, फिर सोशल एटीट्यूड होता है, फिर डाउट होता है उनकी एबिलिटीज को देखने में, एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेंड स्टाफ। चौथा हमारा प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे पास स्पेशल एजुकेशन का ट्रेंड स्टाफ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में ट्रेंड स्टाफ नहीं है। एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम इन द अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपमेंट कंट्रीज। और तरक्की पजीर मुल्क में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। उनके पास इस किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है, कि वो स्पेशल बच्चों के बारे में कुछ कर सके। फिर लिटरेसी तालीम का मसला है, लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क में गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है साथ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं इंटीग्रेशंस में। ठीक है, एक्सेप्टेंस है, सोशल एटीट्यूड है, डाउट है उनकी सलाहियतों पर, और एजुकेशन सिस्टम और ट्रेन स्टाफ है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी और लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है। ठीक है जी, अब सोल्यूशन क्या है इसका? ठीक है, पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, सोल्यूशन क्या है आप इसको। ठीक है, पहले तो आप जो है ना, अब आप टाइप करें, थोड़ी देर इसको पढ़े, इन दोनों चीज़ों को पढ़े। ठीक है, हाउ टू सोशली इंटीग्रेट द हैंडीकैप चिल्ड्रन। अब हैंडीकैप चिल्ड्रन को किस तरीके से आप सोशली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास पढ़ें और फिर आप इसकी प्रॉब्लम से पढ़ें, अच्छी तरह 5-10 मिनट लगाएं, 5-7 मिनट लगाएं इस पे, इसको अच्छी तरह पढ़ें, इसके बारे में समझें, फिर हम जो है ना इसकी सोल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, चले 5-7 मिनट लोगों को शक होता है, इसलिए उसको काम देने से ज़रा अवॉइड करते हैं। एजुकेशन सिस्टम, हमारा तालीमी निज़ाम और उसमें ट्रेंड स्टाफ की कमी की वजह भी एक ये है। दूसरा है एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम्स इन द अंडर डेवलपमेंट एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। कहता है कि खुसूसी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो तरक्की पजीर मुल्कों में है, वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके बाद लिटरेसी की प्रॉब्लम्स हैं, लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट की भी बहुत कमी है इस सिलसिले में। अब मैंने
सारी चीजें. अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट द सब टाइप ऑफ द persons from the disability situation to mainstream. ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है? स्प्रेड द अवेयरनेस. सबसे पहले तो आगाही आगाही फैलाएं. आगाही फैलाएं भाई. ये जो डिसेबल बच्चा है, अगर एक गूंगा पैरा बच्चा पैदा हो गया या विजुअल इम्पेयर्ड पैदा हो गया, तो प्लीज इसकी एबिलिटीज किसी तरह भी एक नॉर्मल बंदे से कम नहीं है. आप इसको, इस बात को समझो कि ये भी अल्लाह ताला की, अगर अल्लाह ताला ने उससे एक हिस्सा उसकी कम कर दी है, तो उसमें और उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको इनहेंस कर दी है उसने. ठीक है, पेरेंट्स मस्ट बी एजुकेटेड. इससे में वालिदैन को जो है ना तालीम याफ्ता होना चाहिए. वालिदैन को बताना चाहिए. गवर्नमेंट मस्ट डू मोर. गवर्नमेंट को मजीद बहुत कुछ करना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल. ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है. हर इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है. ये न सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना ही माशरे की जिम्मेदारी है. ये हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि इस बात को समझे. ठीक है, और पेरेंट्स ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रन फॉर गिविंग हैंडीकैप अ बेटर फ्यूचर. जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे होंगे बहरे पैदा, जो वो अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. उनको जिंदगी के हर शोबे में जो है ना बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बराबर मौके मिलने चाहिए. दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन. स्पोर्ट्स मस्ट बी यूज्ड एज टूल. स्पोर्ट्स जो है, खेलों को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है जी, आपको सोल्यूशन समझ आई है सारी. Spread awareness. Parents must be educated. वालिदैन को एजुकेटेड एजुकेट करना. Government must do more. Responsibility of each individual. Education and vocational training. हाँ, उनको एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग मस्ट है आपके लिए. क्यों कि वो दफ्तरी मामलात में इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना उनको लाजमी देनी चाहिए बच्चों को. ओके जी, now we go ahead. Ways to promote. How we can promote. How we can spread the awareness among the nation. Through we can spread the awareness through radio and TV, internet, social media, newspaper, seminars, cable ads, awareness program. ये वो है प्रमोट तरीके हैं जिनकी बुनियाद पर आप लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं. कौन कौन से हैं? जी, टीवी और रेडियो के जरिए, इंटरनेट, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, केबल एड्स के जरिए अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करके आप लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि हम इन बच्चों को फ्रॉम द डिसेबिलिटी सिचुएशन टू मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं. इनको बेसिक राइट्स देके इनको इग्नोर नहीं करना. ठीक है, इनको हर तरह के मौके फराहम करना है. इनको एक्सेस देनी है हर जगह, और इसके अलावा इनको खेलों में शामिल करना है. खेल को भी एज ए टूल इस्तेमाल करना. ठीक है जी, आ रहा है ना समझ? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स. ठीक है, पहले मैंने आपको बताया है क्या वालिदैन को होता है, फिर मैंने आपको बताया क्या होता है, फिर सोल्यूशन बताई है, फिर मैंने बताया. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, अब ये लिंक
जो कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, ठीक है। हाउ टू सोशली इंटीग्रेट द हैंडीकैप चिल्ड्रन, हम कैसे उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये चीजें करके। फिर मैंने आपको बताया कि इन प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है जब आप उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, फिर उनका सोल्यूशन बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया है कि कौन से वो तरीके हैं, कौन से वो तरीके हैं कौन से वो तरीके हैं जिनके जरिए हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। जी, पता लग गया ना आपको? गुड, शाबाश। HIC in inclusive school problems, placement problem, negative attitude, ठीक है, lack of trained teachers, shortage of assistive devices, same curriculum, stigma, socialization और integrations, ठीक है। अब हम बात करेंगे HIC in inclusive school problems। प्लेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड होता है, लेक ऑफ ट्रेन टीचर, ट्रेन टीचर भी जो आपके पास ट्रेन टीचर की बहुत कमी है, शॉर्टेज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, आपके पास डिवाइसेस की भी बहुत कमी है। आपके पास जो प्रॉपर डिवाइस और डिवाइस है भी, तो हमारे जो पुअर वालिदैन होते हैं इन बच्चों के, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं सिर्फ यही बात करता हूँ, मैं हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करता हूँ कि हीयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चों के आले भी जो है ना, वो 1-1 लाख का 8-10 हज़ार से लेके लाख 1.5 लाख तक आला भी है, आला इस्तेमाल। और अगर तो वो कोक्लिया प्लांट करवाएं, कोक्लिया इम्प्लांट, तो वो तो समझ कम से कम 25 से 30 लाख का होता है, ठीक है। आप देखें, एक बंदे आजकल के दौर में अगर किसी के पास खाने के लिए भी नहीं है और 4-5 बच्चे हैं, तो उसमें अगर 1 या 2 बच्चे उसके ऐसे आ जाते हैं, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकेगा, ठीक है। तो ये है कि शॉर्टेज हमारे पास जो है ना, शॉर्टेज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस भी नहीं है। ज़्यादा डिवाइसेस तभी होंगी कि अगर वो अफोर्ड कर सकेगा। लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाए, ऐसे अगरचे की कोशिश हो रही है इन बच्चों के सिलसिले में, लेकिन जिस हद तक कोशिश होनी चाहिए उस हद तक नहीं हो रही है। इसमें तेजी लानी चाहिए, क्योंकि माशरे में जो है ना, हैंडीकैप बच्चों की, हैंडीकैप अफराद की देखा गया है कि वो अक्सरियत होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को जिस रफ्तार के साथ काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उस तरह से काम कर नहीं रही। आगे सेम करिकुलम में भी बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है नॉर्मल बच्चों के और उनके बच्चों के करिकुलम में भी बहुत फ़र्क है। लिहाजा जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि खुसूसी बच्चों का जो करिकुलम बनाए, वो उससे जो नॉर्मल बच्चों का करिकुलम है उसका आइनेदार हो, उसकी वो अक्कासी करता हो, ठीक है, उसके बाई बाई हो, उसके करीब करीब हो। ये नहीं कि उससे बिल्कुल अलग चीज़ उसने बना दी और नॉर्मल बच्चों के लिए बिल्कुल अलग बना दी। तो ऐसे बच्चे जब मेन स्ट्रीम में अव्वल तो जा ही नहीं सकते, लेकिन अगर वो मेन स्ट्रीम में जाएंगे तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने वो करिकुलम स्टडी नहीं किया होगा जो कि नॉर्मल बच्चों का होगा। लिहाजा जो है ना, नॉर्मल बच्चों का जो करिकुलम है, वो उसमें से ही इन बच्चों का करिकुलम बनाना चाहिए। स्टिग्मा भी ये है कि इसको आप ये ना समझें कि ये एक सजा है या एक इम्तिहान है, इसको बस समझे कि भाई अल्लाह की हिकमत है और
کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. سوشلائزیشن. جی سوشلائزیشن ٹھیک ہے. سماجی جو ہے نا پرابلمس جو ہے نا بہت زیادہ ہیں. سماجی پرابلمس تو آپ کو میں نے بتایا ہی ہے کہ ان بچوں کو جو ہے نا عجیب مخلوق سمجھا جاتا ہے معاشرے کی, اور ان بچوں کو وہ اہمیت وہ ترجیح نہیں دی جاتی جو کہ دوسرے لوگوں کو دی جاتی ہے. جب کسی محفل میں اس قسم کا بچہ بیٹھا ہو تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی اور مخلوق ہے یہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان بچوں کی صلاحیتیں میں بھی اگر محفل میں اگر 10 بندے بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے 5 بندوں سے زیادہ ان میں صلاحیتیں, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے کہ اگر ایک بچہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے, ایک بچہ اگر ویژول امپیئرڈ ہے تو ٹھیک ہے ویژول امپیئرڈ ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, تو اس لہذا اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے, اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. انٹیگریشنز ہوتا ہے آپ نے ان کو کیسے اس پہ مرجنگ کرنی ہے ان کی. ٹھیک ہے, جو ہے بچے جو اسپیشل بچے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے ایجوکیٹ کر کے ان کو کس طریقے سے آپ اسسٹو ڈیوائسز کے ذریعے ان کو ٹرین کر کے معاشرے کا مدعومن ثابت کرنا ہے اور مین اسٹریم میں لانا ہے. ٹھیک ہے جی. ایچ آئی سی ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن, ایچ آئی سی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن انکلوزیو اسکول پرابلم. ٹھیک ہے, نارمل اسکول کے مسائل کون کون سے ہیں؟ پلیسمنٹ آف پرابلمس ہوتی ہے, نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, لیک آف ٹرینڈ ٹیچرز ہوتا ہے, شارٹیج آف اسسٹو ڈیوائسز ہوتا ہے, سیم کریکولم ہوتا ہے, اسٹگما ہوتا ہے, اور سولوشنز کیا ہے اس کی؟ میک یوز آف اویلیبل ٹیکنالوجی. ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے؟ نو گیو می ریسپونڈ. ابھی تک کیا سمجھ آیا؟ کوئی پرابلم, کوئی کوشچن ہو؟ اینی کوشچن وڈ یو لائک ٹو آسک می؟ ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے, کوئی اینی کوشچن, کسی کو کوشچن ہو تو کوشچن کر سکتا ہے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی کوشچن ہے, کوئی بات کرنی ہے تو بتا دیں مجھے. کون چیک کرتا ہے آپ کے پیپر؟ ہم ہی چیک کرتے ہیں, اور کون چیک کرتا ہے؟ ہم ٹیچر چیک کرتے ہیں نا پیپرز کی. تو جو لیکچر دے رہے ہیں وہی جو یہ تو نہیں نا کوئی باہر سے کوئی مزدور لا کے آپ پیپر چیک کرتے ہیں. مزدور آپ کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, وہی جو ہم گورنمنٹ کالجز اسکولز کے ٹیچرز ہیں وہی ہم لوگ لیکچر بھی دیتے ہیں جو ہم ان بچوں کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے, اور یہی ہم لوگ بھی پیپر چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آیا آپ کو؟ جی, اینی کوشچن مور؟ ٹھیک ہے, چلیں لاسٹ پہ ان شاء اللہ کریں گے آپ لوگوں کو. اچھا جی, اب ہم سولوشنز کی طرف تھوڑا چلتے ہیں.
अच्छा कर दूंगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा, सही है, ठीक है. Make use of the available technology. Make use the available technology. Be creating awareness. हाँ जी. ठीक है जी, ओके. अच्छा. Make use the available technology by creating awareness. Use visual stimulus. Consider the classroom arrangement. ठीक है. Make use of available technology. जो available technology है उनको कैसे आप यूजफुल बना सकते हैं. इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करना. इसके अलावा विजुअल स्टिमुलस पैदा करना. कंसिडर क्लासरूम मैनेजमेंट. क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में कंसिडर करना. ठीक है. कीप अननेसेसरी नॉइज टू द मिनिमम. हाँ, अननेसेसरी आवाज से बचना. अननेसेसरी आवाजों को जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब ऐसे बच्चों के साथ हो जो कि हैंडीकैप्ड है, अननेसेसरी बच्चों से आप आवाजों से उसको दूर रखना. Encourage students with the hearing loss to seat themselves towards the front of the lectures theaters where they will have to unobstructed line of the visions. हाँ, उनको ऐसे नहीं बिठाना कि जैसे आम बच्चों को लाइन में बिठाया जाता है. हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जाता है जैसे थिएटर में बिठाया जाता है या बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स में बिठाया जाता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके. तो इस तरीके से उन बच्चों को बिठाया जाए ताकि वो बच्चे जो है ना, हमारे जो साइन लैंग्वेज जो उनकी वो सुन तो नहीं सकते, वो बोल तो नहीं सकते, वो हमारे साइन लैंग्वेज को ही अडॉप्ट करेंगे. ठीक है जी. Use assistive listening devices such as diction loops of its there is available in the lecture theaters. Ensure that any background noise is minimized. ठीक है. कोशिश करें जब आप लेक्चर दे रहे हो तो आपके पीछे आवाजें मिनिमाइज होनी चाहिए. Teachers curriculum modification. Curriculum modification is the most important thing. Secondly, teachers should be trained. Trained teacher जो कि already उन बच्चों को पढ़ा चुके हों या अगर ना पढ़ा चुके हों तो उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग हुई हो कि हाउ टू हैंडल द such type of the persons, such type of the students. So this is the these are the solution. ठीक है. Avoid making assumptions. Individuals who are deaf or hard of hearing can communicate in several ways. ठीक है. कहता है कि assumptions ना करें आप. वो जो डेफ बच्चा आपके सामने है वो एक लिहाज से आपकी बातों को सुन रहा है डिफरेंट वेज के जरिए, वेदर वो किसी साइन लैंग्वेज के जरिए सुन रहा है या उसकी हियरिंग लॉस थोड़ी बहुत ही कम है तो उससे सुन सकता है. स्पीक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट. स्पीक, हाँ, डायरेक्ट स्टूडेंट की तरफ देख के आप बात करें. ये नहीं कि आपका मुंह उधर हो, स्टूडेंट की तरफ बात आप कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है. कोऑर्डिनेट विद द इंटरप्रेटर्स. ठीक है. यूज द विजुअल एड्स. विजुअल एड्स लाजमी इस्तेमाल करें आप. विजुअल एड्स के जरिए देखिए ना, मैं हम जैसे मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, हमारे क्लास के अंदर एलईडी वगैरह लगी हुई हैं, तो मैं किसी बच्चे को क्या कहता हूँ कि मैंगो, आम. अब गूंगा बहरा बच्चा है, उसे क्या पता आम क्या है. उसको पता तो होगा लेकिन डेफिनेटली छोटा बच्चा है उसे क्या पता आम क्या है. या मैं उससे बता, अगर उसे पता नहीं है तो मैं उसे कह रहा हूँ आम आम आम, मैं मुझसे बार बार कह रहा हूँ मैंगो मैंगो मैंगो. उसे क्या पता कि मैं क्या कह रहा हूँ. लेकिन इसी तरह साथ अगर मैं उसके सामने तस्वीर रखूंगा ना कि दिस इज अ मैंगो, फिर मैं उसको इशारा करूंगा तो फिर वो मेरी बात को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा.
کہ یہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں اور یہ چیز ہے وہ. پھر میں اسے کہوں گا کہ کمپیوٹر، پھر میں اسے گاڑی، کچھ چیز بھی کروں گا نا سامنے، اس کی جب پکچر سامنے رکھوں گا تو پھر بچے وہ ایلیبوریٹ بیٹر طریقے سے ہو سکتا ہے ایلیبوریٹ. ٹھیک ہے، سمجھ آیا نا آپ لوگوں کو؟ گڈ. ہاں جی ٹھیک ہے، کلیئرٹی ہے. گڈ، شاباش. سمجھ آئیے میری بات آپ کو، یہ جو میں نے سمجھایا ہے ابھی؟ گڈ، شاباش، ویری گڈ. میک شیور ویڈیوز آر کیپشن. وہی بات آ گئی کہ ویڈیوز دکھائیں اس کو، کیپشن کریں اس پہ. پرووائڈ ریپڈ رسپانس اینڈ ایکسپلینیشن. ریپڈ جو ہے نا اس کو ریپڈلی رسپانس کریں، اس کو ایکسپلین کریں. اوائڈ کریٹنگ یونیک سائنس فار ورڈس اور کنسپٹ. نئی نئی باتیں نہ کریں، نئی نئی چیزیں نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. میکنگ انفراسٹرکچر ایکسیسیبل. ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر کو ایکسیسیبل بنائیں. بائی الوکیٹنگ نیڈیڈ فنڈس. گورنمنٹ کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ان کو فنڈس دینی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹیچرس ٹرین ہونے چاہیے، ریسورس روم ہونے چاہیے. Now your lecture is end. Now we repeat our lecture and discuss. And now your session will be started after 15 minutes. Answering questioning. ٹھیک ہے، 15 منٹ کے بعد 15 منٹ کی اب ہم بریک کریں گے، 15 منٹ کی جو ریسٹ کریں گے تھوڑا سا، اور 15 منٹ کے بعد آپ کے جو ہے نا آنسرنگ کوشچن آپ کا شروع ہوگا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے نا 15 منٹ آپ اس کو سارا دیکھ لیں، اور جو کچھ میں نے پڑھایا ہے اس کے بارے میں کوشچن آپ کے ذہن میں ہے کوشچن رکھ لیں، اور جو ہے نا پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے 15 منٹ کے بعد. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ لوگوں کو میری بات؟ چلو شاباش، ویری گڈ. 15 منٹ کے بعد ہم اس پہ ڈسکس کریں گے دوبارہ.